Teachers, Ginpachi Sensei. What's going on guys? Assalamu alaikum, back at it with another video. I hope all of you are doing great. भाई जिन लोगों ने गिंटामा नहीं देखा है जाके देख लें. It's a very good anime. The intro was basically a reference to गिंटामा. गिंटामा के एंड में वो जो शॉर्ट्स चलते थे ना टीचर्स गिनपाची सेंसे वाले. Anyway, भाई आज मैं आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री क्लास देने वाला हूँ. उसकी वजह ये है कि the sneaker that I have to cover today basically represents a very significant, very rich part of the history. और कोई हल्का पुल्का पार्ट नहीं है. Today I'm going to tell you how the Air Jordan and specifically Air Jordan 1 जो कि पहला जूता था Air Jordan के लाइनअप में, how that came into being. वो कैसे बना, उसके पीछे रीजन क्या थी, हिस्ट्री क्या थी, क्या आइडियाज थे उसके पीछे, and why was it basically invented or formed in the first place. तो भाई sit back, relax, chill करें थोड़ा, सुने पूरी वीडियो आराम से देखें and I hope you guys enjoy it. तो भाई हम थोड़ा जाते हैं, थोड़ा नहीं बहुत टाइम में पीछे जाते हैं. It's basically the Air 1983. Michael Jordan is still a rookie playing for his university and everything. In the following year 1984 में Michael Jordan was drafted in the NBA Chicago Bulls में basically. अच्छा, at this time Nike on the whole was a relatively new player to the whole basketball sneaker thing, right? Nike के basketball के जूते थे कुछ वर्ष से पहले. Nike basically made the Air Force One and they were pushing it a lot to be their signature basketball shoe. उससे पहले they had the dunk, they had the airship, they had the air itself. तो ये काफी सारी चीजें थी. But believe it or not, the basketball shoe scene was actually dominated by two companies back then. पहली थी Adidas, or no surprises there because Adidas has always been associated with sports and everything. And the second company was actually Converse. Yes, the same Converse जो कि आज बड़ा ही कोई punk side पे, skateboard street side पे जिनका एक image बन गया है. That Converse used to dominate the basketball sneakers scene back then. Nike was very new to the entire thing और Nike के roster पे इतने कोई well known significant players थे भी नहीं. They had good players for the Air Force One because they were pushing with the Air Force One, but कुछ शक्लें नहीं थी जिससे एक impact बनता उनके जूतों पे. On the other hand, Adidas and Converse both had good bases, good basketball faces to basically represent their sneakers. खैर Nike ने देखा कि भाई माइकल जॉर्डन एक rising star है और इस बॉय को घेरने की कोशिश करते हैं. अच्छा, mind you back then 1983-84 के टाइम पे माइकल जॉर्डन was around 19 to 20 years old. Obviously उस एज ब्रैकेट में लोगों की choices, preferences भी डिफरेंट किस्म की होती हैं. तो माइकल जॉर्डन also preferred the stripes and stars of Converse and Adidas, and he did not want to sign a contract with an infant basketball shoe brand which was Nike. But on the other hand, मजे की बात ये है कि Adidas did not want to sign a contract with Michael Jordan. तो माइकल जॉर्डन भाई ले दे के Converse के पास गया. Converse could not basically deliver the vision that Michael Jordan had in his head regarding a signature shoe which he will be making in the near future. अच्छा भाई, अब ले दे के बचता कौन है? Nike. So Michael Jordan signed a deal with Nike to basically make a signature shoe और Nike went in all out, guns blazing. They did not hold back. They were like कि भाई lifetime opportunity मिल रही है, बस इसको ना seize कर लो. Anyway, so the creative director of Nike back then, Peter Moore, was basically जिस बंदे ने Nike Dunk भी बनाया था, he was assigned to make a signature shoe for a very special shoe for Michael Jordan. अच्छा, माइकल जॉर्डन को जो कि नाइकी के जूते पसंद नहीं थे स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि करंट जो जूता बास्केटबॉल सीन में पुश कराया आ रहा था उसका कोई एयर फोर्स वन था. एयर फोर्स वन का एयर यूनिट इतना कोई मोटा होता है. माइकल जॉर्डन यूज्ड टू से कि भाई मुझे इतने ज़्यादा अबव द ग्राउंड रहना पसंद नहीं है. आई लाइक टू स्टे ऑन द ग्राउंड. तो मुझे आपकी इतनी मोटी मोटी जो सोल्स होती हैं, आई डू नॉट लाइक देम एट ऑल, एंड ही वाज नॉट अ फैन ऑफ नाइकी शूज. पीटर मूर ने किसी ना किसी तरह भाई कुछ ऊपर नीचे जुगाड़े करके ही वाज एबल टू बेसिकली मेक द एयर यूनिट अ लिटिल बिट फ्लैटर और रादर देन जैसे एयर फोर्स वन मैंने बहुत बार कवर किया. आपने देखा उसकी जो मिड सोल होती है वो कितनी मोटी होती है बिकॉज उसके अंदर जो है पूरा एयर यूनिट लगा होता है. एयर जॉर्डन 1 की रिलेटिवली फ्लैट होती है, इतनी भी फ्लैट नहीं होती बट इतनी मोटी भी नहीं होती. तो पीटर मूर ने उस टाइम पे बैक देन ही बेसिकली सॉर्ट ऑफ फ्लैटेंड द एयर यूनिट टू सम एक्सटेंट एंड ही मेड अ शू which was designed in black and red patterns which represented the Chicago Bulls jersey क्योंकि वो भी रेड और ब्लैक में ही चल रही होती थी. पीछे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. अच्छा, जॉर्डन 1 जब when it came into being, it had a very similar style to the Dunks, to the Air Force Ones. तो ये एक sort of अम्ब्रेला डिज़ाइन कैटेगरी में इनके सारे जूते आना शुरू हो गए थे नाइकी के. अब सेकंड स्टेप था भाई थिंकिंग अ नेम. यस, नोबडी न्यू के भाई एयर जॉर्डन नाम रख दिया जाएगा. अच्छा, अकॉर्डिंग टू नाइकी द नेम वाज थॉट इन मेयरली 3 minutes or 4 minutes, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. हुआ ये कि भाई व्हेन नाइकी के इंटरनल डिस्कशन वगैरह हुआ कि जूते को नाम क्या दिया जाए, तो पहले प्रपोज किया गया कि जूते को बोल देते हैं माइकल जॉर्डन बिकॉज इट वाज हिज सिग्नेचर शू, इट रिप्रेजेंटेड माइकल जॉर्डन. तो व्हाट अदर वे कुड इट बी?
Then someone in Nike said कि भाई nobody is going to take the credibility of a 21-year-old in terms of designer shoes. अब बात आ गई थी थोड़ी डिज़ाइनर फैशन के एंड पे एंड अवे फ्रॉम द होल बास्केटबॉल शू थिंग. बास्केटबॉल में तो माइकल जॉर्डन की क्रेडिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है बन गई थी और लोग लेते भी, बट जब जूता बाहर बिकता या मोर लाइक बास्केटबॉल के रेल्म से बाहर बिकता तो नो वन वुड हैव टेकन द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ 21-year-old बास्केटबॉल रूकी. यस, माइकल जॉर्डन वाज स्टिल अ रूकी बैक देन. ही वाज नॉट द माइकल जॉर्डन के भाई एकदम से बन गया था बिकॉज ही वाज स्टार्टिंग हिज करियर. इमीडिएटली the name Air Jordan was formed because of the fact that Nike Air was a very recent shoe that Nike made, and then Jordan, Michael Jordan. So they combined two names and they basically made Air Jordan. That is how the name Air Jordan was formed, and that is how Air Jordan 1, the first shoe in the Air Jordan lineup, was formed. अच्छा, अब at this point मैं अपना जूता भी रिवील कर देता हूँ, जो जूता मुझे आप लोगों को दिखाना है, because आगे की कहानी जो है you will understand better when you see the shoe for yourself. So this is the Air Jordan 1 2020 Band, and why is it called Band? अभी मैं बताता हूँ. जूते का डब्बा खोलते हैं भाई, and as you can see, जैसा कि मैंने आपको बात बोली कि the very first Air Jordan that was designed was basically in black and red accents. It's the same thing. It represented the Chicago Bulls jersey. और this is not the OG or the retro version. This is the mid-top 2020 वर्जन. एंड आप देख सकते हैं कि इस पे बेसिकली वही सारा हिसाब किताब चल रहा है, ब्लैक, रेड एंड वाइट. आपकी जो मिड सोल है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट के दे हैड टू सॉर्ट ऑफ फ्लैटन इट. बाकी इसके अलावा यहाँ पे इसका नॉर्मल लेदर रहेगा, इसके अलावा रेड पार्ट पे इसका टम्बर लेदर वगैरह चल रहा है. यहाँ पे एयर जॉर्डन का लोगो बना हुआ है. पीछे देयर इज नथिंग. इट्स अ वेरी क्लीन बोल्ड लुकिंग शू. लाइक कोई इतने शशके नहीं है. इट जस्ट रिप्रेजेंट्स द लेगेसी ऑफ एयर जॉर्डन 1 एंड द वेरी फर्स्ट एयर जॉर्डन दैट वाज मेड. तो आप देख सकते हैं कि ये काला और लाल जूता वही एक्सेंट्स वगैरह चल रहे हैं इस पे. नीचे से इसकी सोल भी रेड है. अच्छा, अब हुआ ये कि भाई बास्केटबॉल शूज़ उस टाइम पे जो है, जब एयर जॉर्डन 1 वाज वेरी फर्स्ट इंट्रोड्यूस, बास्केटबॉल शूज़ बैक देन वर वेरी सिंपल सटल. NBA की पॉलिसी से कंप्लायंट जूते बनते थे कि भाई सफ़ेद होते थे, उस पर थोड़े बहुत एक्सेंट्स चला देते थे जो कि जर्सीज वगैरह से मैच करते थे. जैसे एयरफोर्स 1 के बहुत जो इनिशियल एडिशन है उसमें सोल्स उनकी जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट कलर्स की आएंगी. स्विच डिफरेंट कलर का होता था. कभी कभार थोड़े बहुत पैटर्न्स बना देते थे, बट पूरा एक नया रंग और इतना लाइक बोल्ड रंग का जूता बनाना बैक देन वाज अ वेरी वेरी ब्रेव मूव बाय नाइकी. और दिस स्नीकर बैक देन गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन, लाइक नॉट दिस स्पेसिफिक स्नीकर बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो जब एयर जॉर्डन 1 बना ब्लैक और रेड एक्सेंट्स में, तो इट मेड अ बोल्ड स्टेटमेंट. लाइक इट शोड एवरीवन के माइकल जॉर्डन वाज वेयरिंग समथिंग. अच्छा, उससे पहले जो है प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स वगैरह दे यूज्ड टू ड्रेस फॉर्मली एंड एवरीथिंग. माइकल जॉर्डन चेंज्ड द एंटायर थिंग. ही डिसरप्टेड द डायनामिक्स like anything. He brought this entire culture away from the basketball court and on the streets in the entire urban setting. People started looking at basketball shoes in a completely different light and people went crazy. The hype this created because of the fact कि आपका जूता जो है वो माइकल जॉर्डन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यू कैन वेयर इट ऑफ द कोर्ट. ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्ट के अंदर ही पहने. ये जो कोर्ट के अंदर वाले कंप्लायंट जूते हैंगे वो इतने बेसिक हुआ करते थे. पीपल वर लाइक समथिंग लाइक दिस, यू कैन वेयर इट ऑन द स्ट्रीट एज वेल और वेयरएवर यू आर गोइंग, नॉट नेसेसरली विद योर बास्केटबॉल क्लोथ्स. यू कैन वेयर इट विद लाइक जीन्स एंड एवरीथिंग. तो भाई पॉइंट समझने की कोशिश करें कि जूते ने इतनी हाइप क्रिएट करी थी उस टाइम पे, और जलती हुई तेल में डालने के बराबर हुआ ये कि कुछ अरसे बाद आफ्टर द लॉन्च ऑफ एयर जॉर्डन 1 NBA sent a letter to Nike declaring कि भाई ये जूता जो है एयर जॉर्डन 1 जो है हमारी यूनिफॉर्म पॉलिसी से जो है उससे मैच नहीं करता. दिस इज नॉट इन compliance with our standards. So technically the Air Jordan 1 was banned right after its launch. Hence the entire Air Jordan 1 band category, which basically comes in the whole black and red accents, जो कि वही ओरिजिनल Air Jordan को रिप्रेजेंट करते हैं. अब भाई लोगों को जब पता चला कि ये जूता NBA ने बैन करने की कोशिश करी है या कर दिया है, अच्छा इसका भी मैं कहानी अभी आपको बताऊंगा. फॉर नाउ टेक इट एज अ फैक्ट कि NBA ने जूता बैन कर दिया था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ अटेंशन एंड द अमाउंट ऑफ हाइप
दैट वाज ब्रॉट टू दिस शू बाय दिस वेरी वन सिंपल मूव। नाइकी ने करा ये कि भाई उन्होंने देख लिया कि जूते को और माइकल जॉर्डन को मिल रही है टेंशन जो कि उनको चाहिए थी, which they were not able to deliver with their previous basketball shoe which was the Air Force 1। अब हुआ ये कि नाइकी ने बोला भाई उतारा लेटर गया घास खाने। नाइकी ने बोला माइकल जॉर्डन हर मैच में ये जूता पहनेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको वार्निंग मिल चुकी थी NBA की तरफ से, एंड दे वर विलिंग टू पे अ फाइन ऑफ $5,000 पर गेम। और नाइकी ने दिए पैसे, बट माइकल जॉर्डन ने जूता नहीं उतारा। माइकल जॉर्डन केप्ट वेयरिंग दिस स्नीकर। और अब आप ये एड देखें और इस एड के बाद मैं आपसे बाकी बातें करूंगा। On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. तो भाई एड में मतलब नाइकी ने डिक्लेयर कर दिया कि भले NBA बैन करे ना करे, माइकल जॉर्डन को तो NBA शायद ना पहनने दे, आपको कोई नहीं रोक सकता ये जूता पहनने से। और बस वो पॉइंट था, इट वाज द जीनियस ऑफ नाइकी मार्केटिंग थ्रू आउट दिस एंटायर प्रोसेस कि उन्होंने किस तरीके से माइकल जॉर्डन को घेरा, किस तरीके से एक चीज विच वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड टू बी बैंड by the NBA, they still capitalized on that, like brilliant marketing on that point। और वो point था Nike की लाइफ में as a brand where Air Jordan 1 just went like this। और उसके बाद everything just went uphill, including Michael Jordan, including the Jordan brand, and everything related to Jordan was just एक पूरा culture it came into being which represented the Air Jordan। अब at this point बहुत सारी speculation हुई कि यार NBA ने Air Jordan 1 बैन करा है, कौन सा जूता बैन करा है। तो भाई पता ये चला कि 1984 में Michael Jordan wore a shoe which was the Airship, और basically उसका एक special kind of edition था which also was designed in black and red colors, और it was a placeholder for the Air Jordan 1 जब तक ये डिजाइन हो रहा था। तो जूता was जब Air Jordan 1 डिजाइन हो रहा था, the Nike Airship in black and red was basically supposed to take its place for few matches। माइकल जॉर्डन ने एयरशिप पहना उस टाइम पे, और NBA ने टेक्निकली नाइकी एयरशिप बैन किया था, नॉट द एयर जॉर्डन। सो दे नेवर बैंड इट, और बैन कभी था भी नहीं। इट वाज मोर ऑफ अ वार्निंग गिवन बाय NBA टू नाइकी कि यार आप लोग ने किस किस्म का जूता बना लिया है और ये हमारे यूनिफॉर्म के स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा। तो भाई ये बेसिकली स्टोरी थी एयर जॉर्डन की, और मोर ओवर एयर जॉर्डन 1 की, एंड हाउ दिस स्नीकर बेसिकली केम इनटू बीइंग एंड हाउ द एंटायर एयर जॉर्डन legacy came into being। I hope you guys liked the video। If you did, please like the video, subscribe to the channel, it helps me grow, and I'll see you guys next time। Allah Hafiz।